This is my next video on the topic importance of management principle, or as we can say that significance of management principles. कि management principles के क्या-क्या फायदे हैं, which means what are the basically importance they are dealing into that. So there are particular 6 points we are going to discuss today. Point number 1, it states providing managers with useful insight into reality. Very simplistic definition or point of this. मतलब ये जितने principles हैं managers को कैसे help out करते हैं. In a company there are different managers, sales manager, production manager, finance manager, and every manager needs to upgrade their knowledge, their abilities, their experience, their skills, their thoughts. वो बोलते हैं ये जितने principles हैं ये उनकी knowledge को increase करता है, उनकी capacities को increase करता है, उनकी abilities को increase करता है, because उनके पास में they need to take every day multiples of decisions. एंड उनके जो डिसीजंस हैं उनको सही करने के लिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल्स के थॉट्स हैं उनको हेल्प आउट करते हैं टू टेक द राइट डिसीजंस, वेयर टू टेक द डिसीजन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, वेयर टू टेक द डिसीजन ऑफ मोशन स्टडी, वेयर टू टेक द डिसीजन ऑफ फटीग स्टडी, वेयर टू टेक द डिसीजन ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, व्हिच मींस मल्टीपल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हेल्प देम टू टेक द रियलिटी. मतलब उनके सामने रियलिटी लेके आता है बाय टेकिंग द प्रॉपर एजुकेट एंड प्रॉपर स्किल्स उनकी इंक्रीज करके. एंड दे ऑल दीज मैनेजर्स लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑल्सो. जो मिस्टेक्स पहले हो गई हैं वो दोबारा ना आए, इसलिए क्या करते हैं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट स्टेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हिच मींस प्रिंसिपल्स ऑलवेज हेल्प इन अ प्लान स्ट्रक्चर. प्रिंसिपल्स वो है जो ऑलरेडी प्लान है. If you apply in the organization, these all will help the company to move in a smooth culture or a planned systematic culture. Help out करते हैं. And all these principles helps in bringing the maximum benefit for the organization. These principles always does a habit of increasing the efficiency, जो कि benefit है. And all these principles help in non-wastage of resources, which means they need the resources to be used efficiently and effectively. That is man resource or material or money resource, which are the resources there. Let us take an example of motion study. It says that eliminate the unwasteful or the unproductive motions. तो किस पे फोकस कर रहा है? Wasteful activities को delete करने. Fatigue study focus on increasing the efficiency. Efficiency again cost को कम करना, मतलब resources को properly use कर सके. Third point, it states scientific decisions. Scientific decisions means all these principles and techniques which have been propounded by F.W. Taylor. He said that all the decisions to be taken by scientific method. एक मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऑन एवरीडे बेसिस, एंड ही गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ही थॉट दैट कि उसको शायद अपने विश और विल के बेसिस पे डिसीजन लेने चाहिए, बट दे कांट बी प्रोड्यूस्ड इफेक्टिव रिजल्ट्स. इन दैट केस द डिसीजन शुड बी टेकन properly with the thought of scientific management. Let us take an example. We have already done the principle of F.W. Taylor that science is not rule of thumb, जिसमें F.W. टेलर ने हमें बताया कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या, डिक्टेटरशिप, और हमें कोई भी विश विल हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे कोई भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए. सो दीज प्रिंसिपल्स हेल्प अस टू टेक द डिसीजन ऑन साइंटिफिक मेथड. हर एक चीज के पीछे लॉजिक है. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक द स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, कि काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, सो दैट द थिंग्स कैन बी डन इन अ वेरी साइंटिफिक एंड इजी वे. और ये अप्लाई करने से सारी ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम क्या होता है, स्मूथ, नॉन क्योटिक, नॉन प्रॉब्लमेटिक, सिस्टमैटिक कल्चर. पॉइंट नंबर 4 ऑफ द इंपॉर्टेंस इज मीटिंग चेंजिंग इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट चेंजेस को एक्सेप्ट करना. वी नो दैट स्टूडेंट्स, द एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर. It is not in our hand. We need to adapt according to the changes. But एक मैनेजर को चेंज एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल है. These principles help the management or the all over the company to accept the changes in a very smooth culture. बहुत आसानी से कर सकते हैं. Let us take a very simple example. अगर मार्केट में चेंजेस आए हैं, burden of work increase हो गया, so these principles help to divide the work and do the things. Division of work से हम अपना काम कर सकते हैं. मार्केट में चेंजेस आए हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गई है, सो वी शुड गो फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प आउट करते हैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में. अगर कोई काम करवाना है, देन अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पांसिबिलिटी. ये पैरिटी वाला हम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, व्हिच मींस एवरीवेयर दीस प्रिंसिपल्स हेल्प इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस आल्सो. पॉइंट नंबर 5 इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Administration is the basic role function of the top level management, which means to set up the plans, to set up the policies, to be formed, to be framed, to be applied, which means all these work is being done by the top level management.
and these principles are the basic guidelines. ये सारी guidelines हैं to take proper decisions, to take proper administration for the organization. ये जितने भी principles हैं कंपनी के administration में भी help out करते हैं. कंपनी कुछ apply कर सकते हैं principles. Let us take 3 example of this. Unity of command, scalar change, unity of direction. Unity of command अगर apply करते हैं top level तो उनको क्या पता चलेगा कि one man one boss, काम आसान हो सकता है without any confusion. Scalar change, chain of authority, सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, नो कम्युनिकेशन गैप होगा, काम फिर अच्छा से चलेगा. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, व्हिच मीन डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम वन हेड वन प्लान, दैट इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज, फिर काम आसान हो जाएगा. सो दीज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज कैन बी डन इजीली विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. पॉइंट नंबर 6 इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी. In an organization, there is not only a one objective, that is organization, but there is another objective also, social objective. तो ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हमें हेल्प आउट करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अपना डिलीवर करने के लिए. हाउ कैन वी से दैट? लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन. फेयर रेम्यूनरेशन मींस वी शुड गिव कॉम्पिटिटिव सैलरी टू ईच एंड एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द वेजेस एक्ट. जिससे क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज होगा, इकोनॉमी इंक्रीज होगी, जीडीपी कल्चर इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज होगा. तो बोलते हैं ये सारे कंसेप्ट्स क्या करते हैं? सोशल वेलफेयर को भी इंक्रीज करते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अटेन करते हैं. So guys, these were the basically importance of principles of management. Thank you so much. Do visit my next video on the further topic.